Welcome to this lecture on gravitation. Today we will first discuss Kepler's third law, then we will derive this Kepler's third law. After that we will use this Kepler's third law for deriving Newton's law of gravitation, and then we will also study inertial and gravitational masses. Now see, we have discussed in our previous lecture law of orbits and law of areas. Law of orbits में हमने बोला था, क्या बोला था हमने, कि every planet revolves around the sun in an elliptical orbit with sun lying at its one focus. दूसरा हमने बताया था कि the areal velocity of planet around the sun remains constant, or the line joining the sun to the planet sweeps out equal areas in equal intervals of time. Now, in your ellipse, in your elliptical orbit, I have told you have two axes. This is minor axis and this is major axis. ठीक है ना? Yes sir. जो आपका Kepler's law of periods है, ठीक है ना? Kepler's जो है ना law of periods जो है, उसमें पहले मैं बताऊंगा. आज का जो आप पढ़ेंगे that is law of periods, ठीक है ना? यहां देखो मेरी तरफ. ये एक्सिस जो है दिस इज मेजर एक्सिस, ये एक्सिस जो है दिस इज माइनर एक्सिस. इस मेजर एक्सिस का हाफ जो होगा, ये हाफ, इसको हम कहते हैं सेमी मेजर एक्सिस. क्या कहते हैं? सेमी मेजर एक्सिस. ठीक है. अगर ये आपका ये मेजर एक्सिस जो है, सपोज दिस मेजर एक्सिस इज 2r, व्हाट इज दिस? 2r. तो आपकी जो सेमी मेजर एक्सिस होगी दैट विल बी r. पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन हो गया टाइम टेकन बाय द प्लेनेट टू कंप्लीट वन फुल रिवोल्यूशन अराउंड द सन. ये कहता है कि स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ अ प्लेनेट अराउंड द सन, ठीक है ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्टिकल ऑर्बिट. केपलर्स लॉ ऑफ पीरियड्स कहता है square of period of revolution of a planet around the sun, that means square of the time taken by the planet to complete one full revolution around the sun, that is directly proportional to the cube of semi major axis of the elliptical orbit. That is directly proportional to the cube of semi major axis of the elliptical orbit. That is जो आपका t square है, that is directly proportional to r cube. हमको आज यही प्रूव करना है कि t स्क्वायर जो है that is proportional to r cube. What is t? T is the period of revolution of planet around the sun. What is r? R is the semi major axis of the elliptical orbit, यानी half of your major axis. तो ये ला जो है square of period of revolution of planet around the sun is directly proportional to the cube of the semi major axis of the elliptical orbit. देखिए बच्चों, ये ला हम कैसे प्रूव करेंगे. सपोज हम कहेंगे कि दिस इज माय सन, दिस इज सन. सपोज हमारा जो प्लेनेट है वो रिवॉल्व करता है राउंड द सन इन ए सर्कुलर ऑर्बिट. फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी, सिंपल करने के लिए हम यहां एज्यूम करेंगे कि जो ऑर्बिट ऑफ प्लेनेट अराउंड द सन है दैट इज सर्कुलर, दैट इज सर्कुलर. सपोज हमारा प्लेनेट जो है दिस रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट, in a circular orbit, not elliptical orbit, in an elliptical orbit of radius r. Suppose इस हमारा जो प्लेनेट है, इस प्लेनेट की मास जो है suppose that is m, suppose that is m. यहां मेरा प्लेनेट है, इस प्लेनेट का मास m है. It revolves around the sun of mass m in a circular orbit of radius r. Suppose मैंने एक प्लेनेट लिया, जिस प्लेनेट का मास जो है वो है m, ठीक है ना, स्मॉल m. That planet revolves around the sun
not in a circular elliptical orbit, but let us here suppose that planet revolves around the sun in a circular orbit. यहाँ हम assume करेंगे कि जो ये orbit of planet around the sun है, ये orbit है circular. Suppose जो ये planet है, इसकी mass m है. Suppose it revolves around the planet, it revolves around the sun with an orbital speed v. हमारा जो प्लेनेट है ये रिवॉल्व करता है राउंड द सन एक सर्कुलर ऑर्बिट में विद ऑर्बिटल स्पीड v. ठीक है ना. ये एरो जो है, टेंजेंट जो है, ये है डायरेक्शन ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी. ठीक है. नाउ जब ये प्लेनेट रिवॉल्व करेगा राउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट, इस प्लेनेट को सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत है ना. इस प्लेनेट को किसकी जरूरत है? सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत है. ठीक है ना. It needs what force? Centripetal force in order to revolve around the sun in a circular orbit. तो मैं यहां पर देखूंगा, suppose m जो है, this is mass of planet that revolves round the sun of mass m in a circular orbit of radius r, in a circular orbit of radius r with velocity v. v जो है आप यहां पर ये प्लेनेट की ऑर्बिटल वेलोसिटी है. ठीक है ना. सपोज t जो है that is period of revolution of planet around the sun. यानी t जो है वो टाइम है जो प्लेनेट को एक कंप्लीट चक्कर करने के लिए लगेगा अराउंड द सन. एक कंप्लीट घूमेगा वो सर्कल में, एक कंप्लीट चक्कर करने के लिए जो प्लेनेट को टाइम लगेगा उसी को हम कहते हैं पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, या उसको कहते हैं टाइम पीरियड ऑफ प्लेनेट. ठीक है ना. नाउ fc जो है वो हम लेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स which is required by this planet to move around the sun. fc जो है that is centripetal force required by the planet to move in this circular orbit. Now suppose बच्चों f जो है वो है gravitational force जो किसने exert किया? सन ने. किस पे exert किया? planet. ठीक है ना. F is equal to magnitude of gravitational force exerted by the sun on the planet. मैंने यहां दो फोर्सेस ले लिए. एक फोर्स मैंने सेंट्रीपिटल फोर्स ले लिया. वो किसको जरूरत है? प्लेनेट को जरूरत है in order to revolve around the sun in this circular orbit. चूंकि ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा it acts along the radius and this centripetal force will be directed towards the center of the orbit. That means it will be directed towards the sun. सेकंड फोर्स जो है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स. वो किसने एक्सर्ट किया? वो सन ने एक्सर्ट किया. किस पे? प्लेनेट पे. एंड दैट ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सन. ठीक है ना. टुवर्ड्स द सन. नाउ ये fc जो है इसका मैग्नीट्यूड जो सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड जो होता है वो होता है mv² डिवाइडेड बाय r. ठीक है. जो f है दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है ना. वो एज पर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वो हो गया है कैपिटल G, कैपिटल M, कैपिटल स्मॉल m डिवाइडेड बाय r². नाउ ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है इट विल एक्ट अराउंड द रेडियस डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सन. Gravitational force जो है it is acting along the radius and it is also directed towards the sun. Since जो एक gravitational force है it is perpendicular to the direction of motion of planet. देखो planet की जो direction of motion है वो यहाँ से है और gravitational force जो है वो है perpendicular to the direction of motion of planet. ठीक है ना. चूंकि gravitational force direction of planet को perpendicular है, लिहाजा gravitational force इस planet की direction को change करेगा. It will compel this planet to move in a circular orbit. Therefore, this gravitational force here it will provide us the necessary centripetal force which is required by our planet.
यहां पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इट विल प्रोवाइड दिस प्लेनेट द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। क्यों? जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्लेनेट, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ प्लेनेट। प्लेनेट यहां से जा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स यहां से है, तो ये फोर्स जो है ये प्लेनेट को यहां नहीं जानेगा, यहां जाने नहीं देगा। इट विल कंपेल द प्लेनेट टू मूव इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। देयरफॉर दिस ग्रेविटेशनल फोर्स इट विल प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स। इन अदर वर्ड्स these two forces they will be equal to each other। ठीक है ना? हम लिखेंगे here FC is equal to F। FC जो है वो होगा F के बराबर। FC किसके बराबर है? शाबाश बच्चों शाबाश, mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। ठीक है, इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बराबर है? शाबाश, G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। कैपिटल M जो है वो है मास ऑफ सन, स्मॉल m जो है वो है मास ऑफ प्लेनेट। यहां पर भी है, यहां पर भी एक कैपिटल R है, यहां पर भी एक कैपिटल R है, mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल R। क्योंकि मेरा ऑर्बिट जो है उसका रेडियस क्या है? R। उसका रेडियस क्या है? R। सो हियर वी हैव दिस इज कैपिटल R। This R and this R goes and this M and this M goes। तो आपको यहां क्या निकला? आपको निकला v स्क्वायर इज इक्वल टू G कैपिटल M डिवाइडेड बाय R। M and M goes, R and R goes, तो वहां पर एक आ रहा। नाउ इसको रखेंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ v जो है ये प्लेनेट की ऑर्बिटल वेलोसिटी है। ये v किसके बराबर होगी? दिस इज ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ प्लेनेट, ऑर्बिटल स्पीड ऑफ प्लेनेट। ये v होगा बराबर डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द प्लेनेट इन वन रिवोल्यूशन, distance traveled by the planet in one revolution divided by time period, divided by time period of planet, divided by time period of planet। v जो है ये है distance traveled by the planet in one revolution, यानी एक रिवोल्यूशन में जो प्लेनेट ने डिस्टेंस कवर की, डिवाइडेड बाय उस एक रिवोल्यूशन में जो प्लेनेट डिस्टेंस कवर करेगा, उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए जो टाइम लगेगा उस टाइम को क्या कहते हैं? टाइम पीरियड। क्योंकि स्पीड जो होता है वो होता है डिस्टेंस बाय टाइम। यहां हम बताएंगे कि ये जो v है ये है डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द प्लेनेट इन वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन डिवाइडेड बाय उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए जो टाइम लगेगा उस टाइम को हम कहते हैं टाइम पीरियड। ये जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय प्लेनेट इन वन रिवोल्यूशन जो है ये है बराबर सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस ऑर्बिट। क्योंकि यहां प्लेनेट था, ठीक है ना, यहां प्लेनेट था, यहां से निकला, यहां से निकला, यहां से निकला, यहां से निकला, तो वापस आया इस पॉइंट पे। जो एक रिवोल्यूशन में जो प्लेनेट ने डिस्टेंस कवर की वो होगी बराबर सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट, या हम कहेंगे वो होगी बराबर लेंथ ऑफ ऑर्बिट। ऑर्बिट क्योंकि सर्कुलर है, क्योंकि इसकी लेंथ जो होगी वो होगा इसका सर्कमफ्रेंस। तो सर्कुलर ऑर्बिट का सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई r। तो आपका v जो होगा, v आपका होगा 2 पाई r डिवाइडेड बाय t। ठीक है ना, 2 पाई r डिवाइडेड बाय t। अब आप एक काम करो, जो आपका ये v है इस v का जो वैल्यू है वो आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में दे दो। ठीक है ना, इक्वेशन फर्स्ट में दे दो बच्चा। पुट वैल्यू ऑफ v इन फर्स्ट, वी गेट, यहां पर v के बदले में लिखूंगा 2 पाई r divided by t whole cube, so whole square is equal to शाबाश G कैपिटल M शाबाश divided by R। शाबाश बच्चों, खुला इसको, ये बनेगा 4 पाई स्क्वायर R स्क्वायर डिवाइडेड बाय T स्क्वायर। ठीक है बच्चों, is equal to शाबाश G M डिवाइडेड बाय R। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हमें आएगा ऐसे gm इंटू टी स्क्वायर, gm इंटू टी स्क्वायर, ठीक है ना, इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर, यहां r स्क्वायर यहां से r आएगा 4 पाई स्क्वायर r क्यूब। ठीक है बच्चों, यहां देखो 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर इंटू r हो गया r क्यूब इंटू gm टी स्क्वायर। ठीक है ना, gm टी स्क्वायर। यहां देखो टी स्क्वायर, देखो टी स्क्वायर हो गया बराबर शाबाश 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय gm इंटू r क्यूब। टी स्क्वायर हो गया बराबर 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय gm इंटू r क्यूब। देखो बच्चों 4 पाई स्क्वायर जो है वो है कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट g कांस्टेंट है, मास ऑफ सन कांस्टेंट है। तो आपको निकला यहां टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, व्हिच इज
Kepler's third law, which is law of periods. आपको निकला square of period of revolution of planet around the sun is directly proportional to cube of the semi-major axis. यहाँ निकला cube of the circular, cube of the radius of circular orbit. क्योंकि यहाँ जो semi-major axis होगी, that will be equal to the radius of the circular orbit. तो I proved that Kepler's third law or law of orbits. ये तो मिल रहा सब. क्या बोलते हैं? चलिए Kepler's third law है, जिसको हमने कहा क्या कहा हमने इसको law of periods. अब हम इसी law को यूज करेंगे फॉर डिराइविंग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपको पता है, अगर हमारे पास दो बॉडीज होंगी जिनका मास m1 m2 होगा, सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय डिस्टेंस r, देन जो आपका f होगा दैट विल बी शाबाश, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शाबाश m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. कहां से शुरू करें चलेंगे? तो नाउ लेट अस नाउ डिराइव दिस न्यूटन्स law of gravitation by using law of periods. यहां पर भी हम एज्यूम करेंगे कि सपोज हमारे पास एक प्लेनेट है जो रिवॉल्व करता है राउंड द सन. ये यहां पर सन है, दिस इज सन. ये प्लेनेट हमारा जो है दिस रिवॉल्व्स राउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट ऑफ रेडियस r. ये इसकी ऑर्बिटल स्पीड है. सपोज हमारा जो प्लेनेट है जिसका मास स्मॉल m है, that revolves around the sun not in elliptical orbit but a circular orbit. यहां पर assume करेंगे. What is small m? It is the mass of planet which revolves around the sun in what orbit? In a circular orbit of radius r. What is capital M? Mass of sun. What is small m? Mass of planet. Now इस प्लेनेट को अर्थ के इर्द गिर्द रिवॉल्व करने के लिए एक फोर्स की जरूरत होती है. वो फोर्स क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स. मैं ऐसे लिखूंगा F is equal to centripetal force required by the planet to revolve round the sun. Round the sun in a circular orbit. यहां देखो F जो है वो लिया मैंने सेंट्रीपिटल फोर्स जो प्लेनेट को जरूरत है in order to revolve around the sun in a circular orbit. यहां देखो ये जो F होता है, this F will be equal to mv square divided by r. mv square divided by r. What is this v? v is the orbital speed of planet. ठीक है ना? ये v जो होती है, this v is always equal to, ये v जो यहां पर होगा, what is this v equal to? वेलोसिटी होती है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम. सपोज यहां डिस्टेंस हम लेंगे जो प्लेनेट एक रिवोल्यूशन में टाई करेगा, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्लेनेट बाय कंप्लीटिंग वन फुल रिवोल्यूशन अराउंड द सन. वो डिस्टेंस जो होगी दैट विल बी सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट. यानी जो आपका v होगा ये होगा 2 pi r divided by t. 2 pi r divided by t होगा ना. दिस विल बी इक्वल टू 2 pi r divided by t. ठीक है ना? यहां हम इस v का वैल्यू देंगे. ठीक है, दे दो आप v का वैल्यू. तो आपका f जो है, f आपका निकलेगा m इंटू शाबाश v के बदले क्या लिखेंगे हम शाबाश 2 pi r divided by t होल स्क्वायर. ठीक है, डिवाइडेड बाय t होल स्क्वायर. ये f जो मेरा है दिस विल कम आउट m इंटू 4 pi स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइडेड बाय t स्क्वायर. 4 pi स्क्वायर r स्क्वायर divided by t square. Now what is t? It is the time taken by the planet to complete one full revolution. जाएगा ना? 4 2 2 हो गया 4 mv square by r. mv square by r कौन सा? तो मैंने mv square by r, ये r है. Yes, this is r. mv square by r. ठीक है ना? mv square by r. तो इसका वैल्यू दे दिया यहां पर. Now यहां देखो ये जो है इस r से एक r कट गया तो आपका जो f बन गया यहां पर, f बन गया आपको m स्मॉल m इंटू 4 pi स्क्वायर r divided by t square. What is t? T is the time taken by the planet
to complete one revolution around the sun, and this t is equal to time period of planet. Now, as per Kepler's law, as per law of periods, हमें क्या कहता है शाबाश, जो टी स्क्वायर है वो प्रोपोर्शनल होता है आर क्यूब। टी स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल होता है? आर क्यूब। और हम ऐसे लिखेंगे टी स्क्वायर इज इक्वल टू के आर क्यूब, वह के जो है ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, इससे कांस्टेंट। अब टी स्क्वायर का वैल्यू इस इक्वेशन में देंगे, इसको फर्स्ट रखेंगे। therefore first becomes f is equal to शाबाश m into 4 pi square into r divided by k r cube. f is equal to m 4 pi square into r divided by k r cube. देखो यहां पर एक r से ये कट गया तो यहां 2 r रहे, तो आपका जो f है, f आपका निकलेगा 4 पाई स्क्वायर, पहले कांस्टेंट लिखेंगे 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय k भी कांस्टेंट है, इनटू m डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, इनटू m डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। यहां देखो f जो होगा दिस विल बी प्रोपोर्शनल टू m डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। यहां देखो चूंकि 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय k जो है ये कांस्टेंट है, तो आपका f जो होगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू m डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। चूंकि ये f जो है दिस इज द सेंट्रीपिटल फोर्स, तो आपको पता है दिस सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स व्हिच इज एक्सर्टेड बाय सन ऑन द प्लैनेट। तो इसका मतलब है जो ये f होगा यहां पर, दिस f इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द सन ऑन द प्लैनेट। तो यहां देखो जो ग्रेविटेशनल फोर्स सन ने प्लेनेट पे एक्सर्ट किया दैट इज प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द प्लेनेट, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द प्लेनेट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द प्लेनेट। यानी जो ग्रेविटेशनल फोर्स सन एक्सर्ट करेगा मास प्लेनेट पे वो डायरेक्टली होता है प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द प्लेनेट। मगर चूंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये म्यूचुअल फोर्स है, आपने पढ़ा है जितना एक बॉडी दूसरी बॉडी पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करेगी उतनी दूसरी बॉडी भी पहली बॉडी पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करती है, ठीक है ना। नाउ चूंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स सन ने एक्सर्ट किया प्लेनेट पे दैट इज प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द प्लेनेट, सिमिलरली जो ग्रेविटेशनल फोर्स प्लेनेट एक्सर्ट करेगा किस पे? सन पे, वो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द सन। यहां देखो जो ग्रेविटेशनल फोर्स सन ने प्लेनेट पे एक्सर्ट किया दैट इज प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द प्लेनेट। सिमिलरली इतना ही फोर्स चूंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इज म्यूचुअल फोर्स, जो एक बॉडी दूसरी बॉडी पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करेगी उतना दूसरी पहली पे करेगी, ठीक है ना। ये तो आपने पढ़ लिया है। नाउ ये जो F होगा इतना ही फोर्स प्लेनेट किस पे एक्सर्ट करेगा? सन पे, एंड दैट फोर्स will be proportional to the mass of the sun. What is mass of sun? Mass of sun क्या है? m। ये जो सन ने प्लेनेट पे किया that is proportional to the mass of the planet. जो प्लेनेट वापस करेगा किस पे? सन पे, that will be proportional to the mass of the sun. इन दो फैक्टर्स को आप कंबाइन करो तो आपको क्या निकलेगा? जब आप इनको कंबाइन करेंगे आपको निकलेगा F is proportional to small m capital M divided by R square which is Newton's law of gravitation. इनको कंबाइन करो, ठीक है ना। ये निकलेगा F is proportional to small m capital M divided by R square। यानी जो आपका न्यूटन्स लॉ जो यहां पर फोर्स निकला वो डायरेक्टली निकला प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ द टू बॉडीज, यानी मास ऑफ प्लैनेट एंड मास ऑफ सन, inversely proportional to the square of the distance between the two bodies and a mass and the planet. Therefore this is what law? Newton's law of gravitation. So we have deduced here Newton's law of gravitation from law periods. From law periods. We have deduced Newton's law of gravitation from law periods. Now आगे जाएंगे हम। देखिए बहुत सिंपल है इनर्शिया मास, आपने पढ़ा है इनर्शिया जो है वो आपने पढ़ा है लॉज ऑफ मोशन में, द इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट बाय इटसेल्फ, उसको हम क्या कहते हैं? इनर्शिया। या द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट अपोजेस एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन। एक बॉडी की इनहेरेंट प्रॉपर्टी
जो उस बॉडी को अपने आप में प्रॉपर्टी होगी जिससे वो किस अपोज करेगी किसी भी चीज को, जो चीज उसका स्टेट चेंज करना चाहेगा। आपने ये भी पढ़ा है मास, जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा उसका इनर्शिया ज्यादा होगा। तो हम यहां कहेंगे मास ऑफ द बॉडी which accounts for its inertia, that's called inertial mass. The mass of a body which accounts for the inertia of a body, that means property of a body property of a body by virtue of which it is unable to change its state by itself, ठीक है ना, that mass is called as inertial mass. वो mass which accounts for the inertia of body, that mass is called as, और हम ऐसे कहेंगे mass of the body which measures the inertia of body, that's called as inertial mass. Now ये जो inertial mass जो होती है mi, इसको हम mi से डिनोट करते हैं, ये होता है बराबर रेशियो ऑफ force acting on a body to the acceleration produced in a body. Ratio of force acting on a body या applied on a body to the acceleration produced in a body. यहां देखो as per न्यूटन सेकंड लॉ जो आपको है, F जो होगा वो होगा mi into a, ठीक है ना। अगर हम mi निकालेंगे inertial mass, that will be equal to F by M. तो inertial mass of a body is defined as ratio of force acting on a body to the acceleration produced in a body. या हम ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर A1 होगा, सपोज बॉडी में आपको यूनिट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, तो आपका इनर्शियल मास जो है दैट इज इक्वल टू F. तो हम ऐसे बता सकते हैं इनर्शियल मास ऑफ ए बॉडी इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ यूनिट एक्सेलरेशन इन ए बॉडी, ठीक है ना। वो मास which will account for the inertia of a body, that is called as inertial mass. It is defined as ratio of the force applied on a body to the acceleration produced in a body. अब हम इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ inertial mass. पहली प्रॉपर्टी जो है inertial mass जो है ये डिपेंड करता है, it depends upon the quantity of matter present in a body, quantity of matter present in a body. पहला चीज जो है जिसपे ये inertial mass डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है quantity of matter present in a body. कितना मैटर बॉडी में होगा उतना ही उसमें inertial mass ज्यादा होगा. Larger the quantity of matter possessed by a body, larger will be what? Larger will be its inertial mass, because inertial mass depends upon the quantity of matter present in a body. ये जो है inertial mass, it is independent of shape and state of body. Shape and state of body. Shape and state of body. बॉडी की क्या शक्ल होगी, बॉडी किस स्टेट पे होगी, whether that is in a state of motion or that is in a state of rest. Inertial mass पे कोई फर्क नहीं पड़ता. It depends only on the quantity of matter possessed by a body. जितना एक बॉडी में ज्यादा quantity of matter होगा उतना उसमें inertial mass ज्यादा होगा, ठीक है ना, ठीक है ना। एक दीवार और एक आंट में देखो, आंट जो होगी उसमें बहुत कम quantity of matter है, तो वो बहुत कम अपोजिशन करेगी चेंज इन स्टेट, ठीक है, चेंज इन स्टेट को। दीवार जो है, दीवार बहुत अपोजिशन करेगा टू चेंज इन इट्स स्टेट। देयरफॉर जो दीवार है उसमें ज्यादा क्वांटिटी ऑफ मैटर है, तो इसका मतलब है उसमें इनर्शियल मास ज्यादा है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड स्टेट ऑफ बॉडी। बॉडी की शक्ल क्या है, बॉडी का स्टेट क्या है, उस पर डिपेंड नहीं करता है। नंबर थर्ड जो है इनर्शियल मास, सपोज यहां पर एक बॉडी है, इसका इनर्शियल मास जो है वो है mi। सपोज इस बॉडी के इर्द गिर्द बहुत सारे मासेस हैं, ये जो इनर्शियल मास बॉडी की होगी, it is unaffected by the presence of other bodies present around this mass. हम ऐसे कहते हैं inertial mass of a body is independent, is not affected by the presence of other masses around it. इसकी जो inertial mass है, इस पे इन मासों का, इन बॉडीज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। इसीलिए हम कहते हैं जो inertial mass of a body जो है that is not affected by the presence of other bodies around it. नंबर थर्ड, क्योंकि मास जो है आपका मास स्केलर क्वांटिटी है, अगर हमें दो बॉडीज की inertial masses को ऐड करना होगा, they will follow algebraic addition. They will follow algebraic addition. यानी जो inertial masses जो है they are added algebraically.
दे आर एडेड एल्जेब्रिकली। क्यों ऐड होते हैं एल्जेब्रिकली? बिकॉज मास इज व्हाट क्वांटिटी? मास इज ए स्केलर क्वांटिटी। जो भी स्केलर क्वांटिटी होती है उसमें एल्जेब्रिक एडिशन होता है, जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसमें वेक्टर एडिशन होता है। ठीक है, इसके बाद आगे, अगर हमारी बॉडी मूव करती होगी विद ए स्पीड जो लगभग होगा बराबर स्पीड ऑफ लाइट। अगर हमारी बॉडी जो है, इफ दिस बॉडी इज मूविंग विद ए स्पीड विच इज कंपेरेबल विद द स्पीड ऑफ लाइट, उस सूरत में हमारी जो बॉडी है उसकी जो इनर्शियल मास है वो इंक्रीज होगी विद स्पीड। इनर्शियल मास ऑफ ए बॉडी इंक्रीजेस with the increase in speed of a body, provided the speed of a body is comparable with the speed of light. एक बॉडी की जो रेस्ट मास होती है उसको हम किससे डिनोट करते हैं? m नॉट से। रेस्ट मास वो मास होती है जब बॉडी किस में होती है? रेस्ट में। एज पर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, अगर ये बॉडी मोशन में आएगी, इस बॉडी की जो मूविंग मास होगी, मूविंग मास m, this m is moving mass. This moving mass is related to its rest mass by relation m is equal to m naught divided by 1 minus v square divided by c square. यहां पर m जो है ये बॉडी की तब मास है जब बॉडी किस में होगी? मोशन में। ये m नॉट बॉडी की मास है जब बॉडी किस में? रेस्ट में। मैंने कहा कि अगर हमारी बॉडी मूव करती होगी with a speed equal to the speed of light या comparable with the speed of light, उस वक्त इस बॉडी की जो ये inertial mass है से mi, ये increase होगी with the what? with the speed of a body. देखो यहां v है speed of body, c जो है ये speed of light, ठीक है ना? तो देखो if v is equal to c, यानी अगर बॉडी की स्पीड किसके बराबर होगी? स्पीड ऑफ लाइट। आप देखो बॉडी की जो मास है वो कितनी इंक्रीज होगी इस रिलेशन से। तो m होगा बराबर m नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस c स्क्वायर बाय c स्क्वायर। ठीक है ना, क्योंकि b किसके बराबर? c के बराबर। ये c स्क्वायर और c स्क्वायर कट गया, आपका m जो है दैट विल बी इक्वल टू m नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1। तो आपका m जो होगा वो बनेगा m नॉट डिवाइडेड बाय 0। एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल टू इंफिनिटी। इसका मतलब है अगर मेरी बॉडी मूव करती होगी स्पीड ऑफ लाइट के साथ, उस वक्त मेरी बॉडी की जो मास है वो इंफिनिटी बनेगी। यानी यहां पर आपने प्रूव किया कि स्पीड मास ऑफ ए बॉडी इंक्रीजेस विद द स्पीड ऑफ ए बॉडी प्रोवाइडेड द बॉडी इज मूविंग विद द स्पीड व्हिच इज कंपेरेबल विद द स्पीड ऑफ लाइट। दिस वाज ऑल अबाउट इनर्शियल मास। अब हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल मास। देखो बच्चों, यहां देखो, अब हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल मास। ग्रेविटेशनल मास, ग्रेविटेशनल मास। देखो बच्चों, ग्रेविटेशनल मास क्या है? ग्रेविटेशनल मास क्या है? सपोज बच्चों ये मेरा अर्थ है, सपोज ये अर्थ का सेंटर है, सपोज अर्थ का जो सारा मास है वो कहां पर? इसके सेंटर पे है। सपोज ये अर्थ का सरफेस है, ये अर्थ की रेडियस है। सपोज इस बॉडी की मास जो है वो है mg। क्या है? mg। जरा इन दो बॉडीज के दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स निकालो, जरा ग्रेविटेशनल फोर्स निकालो। किसके बराबर होगा? F होगा बराबर G कैपिटल M स्मॉल mg डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ठीक है ना, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये है ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ ने एक्सर्ट किया इस बॉडी का, जिस बॉडी का मास मैंने क्या लिया? mg। यहां देखो मैं ऐसे लिखूंगा, ये इसका मतलब है F जो है वो प्रोपोर्शनल है mg को, है ना। इसका मतलब है जितना इस बॉडी का मास ज्यादा होगा उतना ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा, उतना अर्थ इस पे ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करेगा। इसका मतलब है जो ये मास है, ये मास, इस बॉडी का जो मास है, इट डिसाइड्स हाउ मच ग्रेविटेशनल फोर्स
is exerted by the earth on a body. जितना इस बॉडी का मास ज्यादा होगा उतना जो अर्थ इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करेगा वो ज्यादा होगा. इसका मतलब है दिस मास it determines how much gravitational force is exerted on the earth on a body. Then this mass is called as a gravitational mass. तो gravitational mass की definition निकली, a mass which determines how much gravitational pull, how much gravitational force earth exerts on the body, that is called as gravitational mass. A mass which determines how much gravitational force is exerted by the earth on a body is called what mass? Gravitational mass. हम डिफाइन कर inertial mass आपने देखा वो है mi is equal to f by a. यहां ग्रेविटेशनल मास देखेंगे, यहां ग्रेविटेशनल मास देखेंगे, यहां देखो यहां हम ग्रेविटेशनल मास देखेंगे. F किसके बराबर है? शाबाश, G डिवाइडेड बाय R स्क्वायर. मैंने कहा mg कौन सी मास है? ग्रेविटेशनल मास, बिकॉज इट डिटरमाइंस हाउ मच ग्रेविटेशनल पुल अर्थ एक्सर्ट्स ऑन द बॉडी. निकालो भाई mg इससे. mg होगा बराबर F स्क्वायर डिवाइडेड बाय Gm. F स्क्वायर डिवाइडेड बाय Gm. अरे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको नीचे लिया, इसको ऐसे लिखेंगे mg इज इक्वल टू f इंटू r स्क्वायर डिवाइडेड बाय gm. mg इज इक्वल टू f इंटू r स्क्वायर डिवाइडेड बाय gm. देखो अगर g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अगर हमारा g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, अगर g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ये जो सरफेस ऑफ अर्थ है अगर उस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है यहां पर? g. ठीक है, तो g की डेफिनेशन आपको पता है, g का एक्सप्रेशन आपको पता है, g होता है बराबर gm डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, gm डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. लेकिन यहां है r स्क्वायर डिवाइडेड बाय gm, इसका रेसिप्रोकल ले लो, ये बनेगा 1 बाय g इज इक्वल टू r स्क्वायर बाय gm. 1 बाय g इज इक्वल टू r स्क्वायर बाय gm. अब ये 1 बाय g का वैल्यू उठाओ, इसको इस इक्वेशन में दे दो, इस इक्वेशन में, इसको इस इक्वेशन में दे दो, फर्स्ट इक्वेशन में, इसको फर्स्ट रखो नाम, दे दो r बाय r स्क्वायर बाय gm के बदले क्या लिखेंगे हम? 1 बाय g. तो आपको क्या निकलेगा? फर्स्ट बिकम्स mg इज इक्वल टू, शाबाश, f इंटू 1 बाय g, यानी mg जो है वो निकला बराबर f बाय g. यानी जो ग्रेविटेशनल मास होता है वो होता है बराबर रेशियो ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द बॉडी टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी. ग्रेविटेशनल मास is defined as ratio of gravitational force exerted on a body by the earth, ठीक है ना, to the acceleration due to gravity produced in a body. अब लास्ट टॉपिक किसका है? इक्विवेलेंस ऑफ inertial and gravitational mass. हम दिखाएंगे कि जो ये ग्रेविटेशनल मास और इनर्शियल मास है ये आपस में बराबर है. Equivalence, EQUILANC, equivalence of inertial and gravitational mass. Equivalence of inertial and gravitational mass. हम दिखाएंगे जो ये ग्रेविटेशनल, इनर्शियल और ग्रेविटेशनल मासेस है ये आपस में बराबर है. देखो 2 मिनट का क्वेश्चन है, 2 मिनट में सारा एक्सप्लेन हो जाएगा. सपोज बच्चों ये हमारा अर्थ है, ये स्फेरिकल है. सपोज O जो है दिस इज द सेंटर ऑफ अर्थ, इसका जो मास है अर्थ का वो m है. सपोज दिस इज रेडियस ऑफ अर्थ. सपोज इस अर्थ पे यहां पे एक बॉडी है जिस बॉडी का ग्रेविटेशनल मास जो है वो है mg. मैंने एक बॉडी ले ली अर्थ के सरफेस पे, ये वाली बॉडी, इस बॉडी का जो ग्रेविटेशनल मास है वो है mg. ठीक है, m जो है वो है मास ऑफ अर्थ. तो F जो है, सपोज F जो है वो है ग्रेविटेशनल मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, या यहां पर मैं कहूंगा F जो है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन द बॉडी. ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है इसका डायरेक्शन जो होता है वो होता है हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ.
नाउ एज पर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये F जो होगा ये होगा G कैपिटल M इंटू mg डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। इसको रखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है बच्चों, यहां देखो F जो है ये है फोर्स ऑफ ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स, या हम इसको कहेंगे फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो अर्थ ने एक्सर्ट किया इस बॉडी का, जिस बॉडी का ग्रेविटेशनल मास कितना है बच्चा? mg। ठीक है, सपोज यहां पर मेरे पास एक बॉडी है, इस बॉडी का इनर्शियल मास mi है। ठीक है, सपोज ये बॉडी जो ये फ्रीली फॉल कर रही है अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, अंडर द ग्रेविटी। जब एक बॉडी फ्रीली फॉल होगी उस बॉडी में जो एक्सेलरेशन पैदा होती है दैट एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उस एक्सेलरेशन को हम कहते हैं क्या? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है ना? व्हाट इज m? सपोज m इज द इनर्शियल मास ऑफ ए बॉडी which is falling freely under the action of gravity। सपोज इसमें भी जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो होगा F। ठीक है ना? एज पर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो ये F होगा ये होगा किसके बराबर? फिर mi into g। व्हाट इज mi? mi is the inertial mass of a body falling freely under gravity। जब कोई बॉडी ग्रेविटी फ्रीली फॉल होती है और ग्रेविटी में उसमें जो एक्सेलरेशन पैदा होता है वो होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देयरफॉर एज पर न्यूटन सेकंड लॉ जो ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी उस बॉडी पे अर्थ एक्सर्ट करेगा दैट विल बी F is equal to mig। अब ये भी फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, ये भी फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, लेट अस इक्वेट देम। ठीक है ना? तो आप लोगों को निकलेगा mi into g is equal to g कैपिटल M स्मॉल mg डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। mi निकालो, mi निकलेगा बराबर g m into mg डिवाइडेड बाय gr स्क्वायर। चूंकि ये g जो है ये इसके डिनोमिनेटर पे जाएगा। यहां देखो g जो है ये कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। m जो है दिस इज मास ऑफ अर्थ कांस्टेंट। g जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहां पर कांस्टेंट है। r जो है रेडियस ऑफ अर्थ ये कांस्टेंट है। इसका मतलब है ये चीज जो है सारा कांस्टेंट है, तो हम ऐसे लिखेंगे mi is equal to k times mg। mi is equal to k times mg। यहां हम क्या काम करते हैं, ये जो k है इसका वैल्यू हम मान लेंगे सपोज, तो आपको mi जो है वो निकलेगा mg के बराबर, यानी आपका जो इनर्शियल मास है वो निकला किसके बराबर? ग्रेविटेशनल मास के बराबर। Therefore these inertial mass and gravitational mass they are equivalent quantities। ठीक है ना? This completes gravitation, this finishes the gravitation। Now some numericals for 2 or 3 days, after 3 days there will be a new chapter।